Hello everyone. So in the last lecture we have discussed about the thrust on plane surfaces. Now we are considering the thrust on curved surfaces. Let us consider any surface S, any curved surface S. So the resultant thrust at any point will act normal to the surface. Let us resolve this resultant thrust at any point in three mutually orthogonal directions. One is normal to the fluid, that is, or normal to the free surface, that is along Z, and two mutually orthogonal horizontal directions, say X and Y. So the resultant thrust, say R, will be equal to square root of x square plus y square plus z square. Here in the first segment we are considering only the vertical thrust, how a fluid presses a curved surface in either upward direction or downward direction. So the resultant in the will be along OZ, say given by component Z. Now how will we calculate this resultant vertical thrust? Let a curved surface be immersed in a fluid so this is a curved surface. थोड़ा इसको समझने के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ बॉल. ठीक है, एक बॉल हमने लिया है. तो तीन केसेस हमारे पास हैं. केस फर्स्ट इज when this ball is pressed downwards by the fluid, or you can say when the fluid is above the surface. ये आप ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कि हमारा जो कर्व्ड सरफेस है इज आइदर प्रेस्ड डाउनवर्ड्स और प्रेस्ड अपवर्ड्स और प्रेस्ड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स साइमल्टेनियसली. So case 1 is whenever this curved surface is pressed downwards. So what are the forces acting on this ball? Let us first consider or draw a cylindrical volume of the fluid above this surface. Say this is the surface named A, B and C. Say this is A dash, B dash and C dash. Draw two vertical lines as D and D dash and E and E dash. So now what are the forces acting on this curved surface? First of all, the weight of the liquid or fluid in this cylinder, because this curved surface is pressed downward by this weight of the fluid. So weight of the fluid in this cylinder of the fluid. So you can say weight of the fluid in this hypothetical cylinder, and this is acting vertically downwards. Now what are the forces on this curved part? म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. ये तो था हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है. ऑब्वियसली दिस फ्लूइड below this surface will also put some pressure in any arbitrary direction. So there will be mutual action and reaction in the equilibrium position. So this mutual
action and reaction on this lower part, say ABC. समझिए हम वेट की बात कर रहे हैं कि इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर के ऊपर हमारे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं. एक तो ये वेट ऑफ दिस फ्लूइड, इसके कारण ये क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. दिस इज़ द फ्री सरफेस. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर नेग्लिजिबल हम लेके चलते हैं तो देर इज़ नो प्रेशर ऑन दिस. इन द लोअर पार्ट, लोअर फेस के ऊपर ऑफ दिस सिलेंडर, म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे फ्लूइड के ऊपर किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है. इसी तरह से एन इक्वल एंड अपोजिट थ्रस्ट और प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड ऑन द लोअर फेस ऑफ दिस सिलेंडर. थर्ड वन इज, अब क्योंकि होल ऑफ द सिलेंडर को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसके कर्व्ड पार्ट के ऊपर भी क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस और नॉर्मल टू द एक्सिस हमारे पास क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट forces. So there are some horizontal forces acting on the cylinder. हम इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के इफ़ेक्ट को ज़्यादा वेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं वर्टिकल थ्रस्ट की. सो रिजॉल्विंग ऑल दीज फोर्सेस अलॉन्ग द नॉर्मल और अलॉन्ग द वर्टिकल. तो ये जितने भी आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर अगर बात करें तो इस तरह से रिएक्ट करेगा. और अगर वो स्टैटिक पोजीशन के अंदर है, इक्वल एंड अपोजिट इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उन फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो. सो रिजॉल्विंग ऑल दीज forces vertically, we have the vertical thrust. क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास आए, तो वेट ऑफ द this hypothetical cylinder acting in the vertically downward direction. And since there is thrust on this face, say R in any direction, then we will resolve this in horizontal and vertical components. So the vertical component of thrust on this curved part, that is vertical thrust on the curved surface, will be equal to the weight of the cylinder above it. तो अब जब भी आप रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट की बात करेंगे, वो जो हमें कर्व्ड सरफेस गिवन है उसके ऊपर जो ये सुपर इनक्यूम्बेंट लिक्विड है, सुपर इनक्यूम्बेंट का मतलब जो इसको प्रेस कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उस लिक्विड के कारण जितना हमारा वेट होगा दैट विल बी दी वर्टिकल थ्रस्ट ऑन दी कर्व्ड सरफेस. ये फोर्सेस आपको समझ आए. हमने क्या किया, इस लोअर फेस से जो कर्व्ड पार्ट हमें गिवन था, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर ऑफ द फ्लूइड अबोव इट, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया. अब क्योंकि ये सारा पार्ट, द कर्व्ड पार्ट एंड द हाइपोथेटिकल सिलेंडर अबोव इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो आपके पास क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे. हम सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं. वैसे आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इस सारे पार्ट के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे. ये आपका फ्री सरफेस है. लोअर फेस के ऊपर आपके पास ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा, कोई ना कोई थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, इसको प्रेस करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है. सेम प्रेशर विल बी balanced by the weight of the liquid or fluid above it. So horizontal forces आपके पास जो curved part of the cylinder के ऊपर होंगे, equal and opposite, ठीक है, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट को हम यहाँ मेजर कर रहे हैं. सो वर्टिकल थ्रस्ट यानी रिजॉल्विंग दिस थ्रस्ट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं. एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट, आप इसको एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में भी कह सकते हैं कि सम ऑफ दिस वेट फोर्स ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एंड वर्टिकल थ्रस्ट, दैट इज थ्रस्ट ड्यू टू द
लिक्विड बिलो द सरफेस और उसका जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक को आप नेगेटिव लेंगे इज इक्वल टू 0 और सिंपली वी कैन से वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व्ड सरफेस विल बी द वेट ऑफ द सिलेंडर अबव इट। तो अब फ्लूइड के अंदर जब भी आपको कोई कर्व्ड सरफेस गिवन है, आप उससे उसके ऊपर जो लिक्विड है उससे एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे और उस सिलेंडर का जितना वेट होगा उतना ही हमारे पास वर्टिकल थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उस कर्व्ड पार्ट के ऊपर। ओके, नाउ द केस सेकंड, कि इस बार हम क्या कर देते हैं, उस बाउल को इन्वर्ट कर देते हैं इन द फ्लूइड। सो नाउ द फ्लूइड विल ट्राई टू प्रेस इट अपवर्ड्स। ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाए इसलिए हम वेसल की थोड़ी सी डिफरेंट शेप ले रहे हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डील करेंगे, प्रेशर एट एनी पॉइंट, ये हमने पढ़ा था कि प्रेशर किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, फ्लूइड में उसकी डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज़ रो जी एच। तो यहाँ अगर फ्लूइड के अंदर डेप्थ की बात करें तो आप इस सरफेस से नहीं करेंगे, वो आपके पास क्या होगा, इस सरफेस से, बिकॉज प्रेशर ऑन दिस पॉइंट इज ड्यू टू दिस फ्लूइड आल्सो, ठीक है। वो कहाँ है इसके अंदर उससे ऊपर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके फ्री सरफेस से या फिर हमने इक्विवेलेंटली क्या पढ़ा था कि इफेक्टिव सरफेस से, ठीक है। यहाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं तो हम फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ बात करते इफेक्टिव सरफेस की, कि वो इफेक्टिव सरफेस या फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर है कर्व्ड सरफेस उसी तरह से, बट इस बार वो क्या कर रहा है, फ्लूइड उसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रेस कर रहा है, ठीक है। सेम वही काम आप करेंगे, इस फ्री सरफेस को लेते हुए एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे, ठीक है। सेम आपके पास सारे फोर्सेस होंगे उसी तरह से कि कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। रिजॉल्विंग दोज वर्टिकली हमारे पास दो तरह के प्रेशर्स आएंगे, एक तो ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रेस कर रहा है फ्लूइड प्रेशर, मान लीजिए किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आर के अंदर वो क्या कर रहा है, सॉरी विद मैग्नीट्यूड आर, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में फ्लूइड हमारा प्रेशर लगा रहा है इस कर्व्ड पार्ट के ऊपर, तो उसको हम क्या करेंगे, से R1 एंड R2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस R1 सिंस दिस सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये आपके पास R1 इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ दिस weight of the fluid in the cylinder. Which will definitely act through its center of gravity, ठीक है, वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा। सेम आप फर्स्ट केस के लिए भी कह सकते हैं कि the resultant vertical thrust will be equal to the weight of the incumbent liquid and that will also act vertically downwards through its center of gravity. Last part आपके पास है कि when partially upward and partially downward direction के अंदर आपके पास फोर्स लगा है फ्लूइड के ऊपर, तो उसी तरह से एक वेसल हमने कंसिडर किया है ऑफ फ्लूइड। इस बार मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस हमें गिवन है that is pressed partially downwards and partially upwards, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑन दिस डाउनवर्ड के केस में तो क्या कर लेंगे, जो पहला केस था हमने उसी तरह से एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया, से नाम दे देते हैं इसको A, B एंड C,
this is some A dash, B dash and C dash. Say this is some point P, एंड इसी तरह से क्योंकि इस बार वो डाउनवर्ड केस में भी है तो दैट इज सम R. Now this ABC is pressed partially upward and partially downward. So we are considering pressure on this surface and pressure on this surface. ठीक है, pressure on surface AR, pressure on surface AR. AR सरफेस के ऊपर, पहले पार्ट के ऊपर आ जी, इज प्रेस्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय द सुपर इनक्यूम्बेंट लिक्विड. तो अगर इसके ऊपर प्रेशर की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ दिस सिलेंडर. सो वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, इसको नाम दे देते हैं AR-CC-A और AR-C-A-. ठीक है, इसी तरह से प्रेशर ऑन दिस, इस फ्लूइड इसको क्या कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश कर रहा है. इस केस में क्या था? फ्लूइड अगर किसी वेसल के अंदर डाल रखा है तो फ्लूइड क्या कर रहा है? इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है. तो दिस वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर AR-C-A- दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इस सिचुएशन को समझिए, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? इन दो कर्व्ड पार्ट के ऊपर प्रेशर की बात कर रहे हैं. ठीक है, फ्लूइड विल प्रेस दिस पार्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो पहले केस में हम चले गए, दैट विल बी वेट ऑफ द सुपर इनक्यूम्बेंट लिक्विड, कि उसके ऊपर जितना लिक्विड है उसका जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर हमने बनाया उसके वेट के इक्वल क्या होगा? वर्टिकल थ्रस्ट होगा, एंड दैट विल एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, इसी तरह से इस सरफेस AP के ऊपर pressure on surface AP will be in the vertically upward direction and is balanced by the weight of the superincumbent liquid. So this will be weight of the liquid in the cylinder इस बार हम सिलेंडर क्या कंसिडर करेंगे? AP-C-A-. ठीक है, एंड दैट विल एक्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो इस पार्ट के ऊपर प्रेशर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. तो इस अगर पूरे सरफेस के ऊपर प्रेशर की बात करें, प्रेशर ऑन सरफेस PAR विल बी इक्वल टू, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ऑब्वियसली वेट ऑफ द लार्जर सिलेंडर विल बी ग्रेटर, सो दैट विल बी वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर AP-C-A- minus weight of the cylinder, AR, larger cylinder, vertically downward direction के अंदर, W into AP-C-A- and the resultant will act in the vertically downward direction. So that will be weight of the fluid in PRQ which act vertically downward. अगर इस टोटल वेट ऑफ द सिलेंडर में से हम इस अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर को क्या कर दें? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? वेट इन दिस पार्ट, वेट ऑफ द लिक्विड enclosed in this part APR.
ये अब तीनों सिचुएशंस आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऑब्जर्व करनी है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, दैट कर्व्ड सरफेस इज प्रेस्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड के केस में आपको क्या करना है, उसके ऊपर जितना भी सुपर इंक्यूबेंट लिक्विड है, ठीक है, उसकी वजह से जितना भी आपके पास फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सुपर इंक्यूबेंट लिक्विड। ठीक है। सेकंड केस के अंदर जब आपके पास दैट कर्व्ड सरफेस इज प्रेस्ड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, then also the weight of the superincumbent liquid, but when it is partially downwards and partially upward, then only the liquid in the vessel, ठीक है, liquid in the vessel or liquid enclosed by this bounding surfaces A, P and AR below and above the curved surface is considered। ठीक है, इसमें हम इस hypothetical part का वेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ क्या बच गया, जो एक्चुअल वेट एनक्लोज्ड बाय दी वेसल हमारे पास है, अबोव एंड बिलो दी सरफेस। तो ये तीनों सिचुएशंस हमारे पास आएंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मान लीजिए हमें इस तरह का वेसल गिवन है, ठीक है, इसके इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे, सो फ्लूइड प्रेशर, अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो भी हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना, या वेसल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, वो आपके सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि किस तरह का कर्व्ड सरफेस आप ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर इसकी वजह से भी है, ठीक है, सो दिस इज द सुपर इंक्यूबेंट लिक्विड अबव द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर जो भी सिलेंडर बनेगा, वेसल के आपकी किस तरह की शेप है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उस कर्व्ड पार्ट के ऊपर जो भी हाइपोथेटिकल सिलेंडर आपके पास बनेगा, उसके अंदर जो लिक्विड है उसके वेट की हम बात करेंगे। वो जितना वेट ऑफ द लिक्विड है उतना ही थ्रस्ट हमारा फ्लूइड उस पार्ट के ऊपर, उस कर्व्ड पार्ट के ऊपर प्रोड्यूस करेगा। सेम बात हमारी बिलो द सरफेस के अंदर था। इस केस में भी हमें क्या करना है कि कहीं भी हमें कोई सरफेस गिवन है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर फॉर्म करेंगे। अब हमें ये नहीं करना है कि हम वेसल से बाहर गए या अंदर गए, ठीक है, हमें इस तरह का एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर कंसिडर करना है, ठीक है, जिसकी हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया हम डिपेंडिंग अपॉन दी शेप ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड डेप्थ ऑफ द सरफेस एरिया इन दी फ्लूइड हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब केस है आपके पास पार्शियली अपवर्ड और पार्शियली डाउनवर्ड की, तो आप ये हाइपोथेटिकल पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, जो एक्चुअल पार्ट है आपके पास ऑफ द फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय द वेसल, वो आप कंसिडर करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट सम हमें गिवन है, a conical vessel filled with water stands with its plane on a horizontal table। एक conical vessel हमें given है, filled with water stands with its plane on a horizontal table। Prove that the thrust of the water on the base of the cone is 3 times the weight of the contained water। हमें क्या करना है, एक टेबल के ऊपर एक कॉनिकल वेसल रखा गया है, a conical vessel filled with water stand with its plane on a horizontal table। Prove that the thrust of the water on the base, हमें इस बेस पार्ट के ऊपर थ्रस्ट निकालना है। सो थ्रस्ट ऑन द बेस, अगर इस बेस को हम एज द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सरफेस कंसिडर करें, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे अप टू द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस। ठीक है, so thrust on this base will be equal to the weight of the liquid
in this cylinder. वेट की अगर बात करें तो वेट हमारे पास क्या होगा, मास इनटू वॉल्यूम, सॉरी दैट इज mg, मास इनटू ग्रेविटी। मास को आप डेंसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और वाटर कंटेन्ड इन इट, देन दिस विल बी v रो z। Volume of the cylinder will be equal to pi into, let r be the radius of this conical vessel, pi r square h into rho z. So the thrust on the base, हम vertical thrust की बात कर रहे हैं क्योंकि horizontal plane के अंदर वो टेबल के ऊपर रखा गया है। total thrust will be along vertical and that will be normal to the table, ठीक है। will be the weight of the liquid in the cylinder। अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ इस लिक्विड को कंसिडर नहीं किया है, ये एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, यहाँ लिक्विड नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इस फ्लूइड की वजह से भी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर इनक्यूम्बेंट लिक्विड, ठीक है। जो ऐसा लिक्विड जो क्या कर रहा है, उसको डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, इसी सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होगा। सो पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द लिक्विड इन इट, और इसके अंदर लिक्विड कितना होगा, दैट इज वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच into rho z. Obviously this is 3 times of the weight of the liquid in the conical vessel. Weight of the liquid in conical vessel. इसको भी आप इसी फॉर्म में बाइफरकेट कर सकते हैं कि that will be some m1g. m1 is the mass of the liquid in the conical vessel, that is some v1 rho z, and v1 is 1/3 pi r square h, volume of the conical vessel, into rho z. क्लियर है।